Hello and good morning students. Welcome to our online session of social science. So students, today we are going to discuss third part of the chapter 13, that is functioning of Indian democracy. So students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is second part. We read about the characteristics of federal form of government. Afterwards, we begin the topic 13.3, that is division of administrative powers. There are certain provisions in the constitution through which the union exercises effective control over the states. So students, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके द्वारा यूनियन गवर्नमेंट राज्यों पर मींस स्टेट्स पर इफेक्टिव कंट्रोल रखती है. So students, our first point is directions to the state government. So first point है हमारा directions to the state government. The central government gives direction to the state governments on subject of national importance and the state follow these directions. So जो central government होती है, central government को हम union government भी कहते हैं. Central government जो होती है वो state government को directions देती है national importance के subject पर. ओके और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं. मींस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं. सब्जेक्ट्स लाइक नेशनल डिफेंस, पॉलिटिकल रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज कम अंडर दिस कैटेगरी. तो जैसे नेशनल डिफेंस, पॉलिटिकल रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, इन सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को इन इस कैटेगरी में आते हैं. मींस कि नेशनल डिफेंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल रिलेशन है किसी फॉरेन कंट्रीज के साथ, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड पॉइंट इज एंट्रस्ट सम वर्क्स ऑफ यूनियन सब्जेक्ट्स टू द स्टेट. इट मींस दैट यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन एंट्रस्ट सम वर्क्स टू द स्टेट गवर्नमेंट. यूनियन एग्जीक्यूटिव कुछ वर्क स्टेट गवर्नमेंट्स को सौंप सकते हैं. The union can give directives to the state to follow any international treaty or agreement. किसी international treaty और agreement को follow करने के लिए union government states को directions दे सकता है. Such institutions can also be given in respect of subjects like security of railway track etc. Railway tracks की security से related आदि ऐसे subjects से related आदेश भी जो है वो दिए जा सकते हैं. Now the third point is all India services. In India, certain services are all India services like the Indian Administrative Service IAS, the Indian Police Service that is IPS, etc. Selection to these services is made by the Union Public Service Commission that is UPSC. इंडिया में कुछ सर्विसेज जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, इंडियन पुलिस सर्विस, IPS. इन सबका जो सिलेक्शन होता है, इन सारी सर्विसेज का जो सिलेक्शन होता है वो यूपीएससी के द्वारा किया जाता है. मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है. द सर्विस कंडीशन ऑफ दीज सर्विसेज आर डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इन सर्विसेज का जो सर्विस कंडीशन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है. यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है. बिसाइड्स सर्विंग इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, these officers serve in the central from time to time. It means कि स्टेट में सर्व करने के अलावा ये ऑफिसर्स जो होते हैं सेंट्रल में भी टाइम टू टाइम अपनी सर्विसेज देते हैं. Thus the central government exercise control over the state. और इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल करती है. Now the fourth point is financial assistance. The money which state government receives from taxes is insufficient. Important sources of income are with the central government. जो मनी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस से मिलती है वो इनसफिशिएंट होती है. Important sources of income सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. The center gives grants to the state government from time to time, through which grants the center exercises control over the states. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को टाइम टू टाइम कुछ मनी से रिलेटेड हेल्प देते हैं और इस सहायता के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स पर अपना प्रभाव रखता है. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज पावर्स ऑफ पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट हैज पावर्स टू डिवाइड अ स्टेट or form one state by integrating two states
or some part of these state and form a new state. पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वह कानून बनाकर कोई नया स्टेट फॉर्म कर सकती है और किसी स्टेट को डिवाइड कर सकती है। डिवाइड कर सकती है स्टेट को, दो स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बना सकती है और उसके कुछ पार्ट्स को मिलाकर एक नया स्टेट फॉर्म कर सकती है। पार्लियामेंट हैज पावर टू डिक्रीज और इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट और चेंज द बाउंड्री ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है और किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकती है। सो दीज आर द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। Now, the sixth point is make laws on subject mentioned in the state list. The states have the power to frame laws and administer them, but this power is not exclusive. States के पास ये right है कि वो state list से related subjects पर कानून बना सकते हैं और उन्हें administer कर सकते हैं, लेकिन ये power exclusive नहीं है. The parliament can enact laws on state subject in the following circumstances. कुछ सर्कमस्टांसेस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है। सो द फर्स्ट इज इन केसेस वेयर राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट सर्कमस्टांसेस है कि ऐसा केस जिसमें राज्यसभा मींस की काउंसिल ऑफ स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दे, तो ऐसी कंडीशन है फर्स्ट। सेकंड कंडीशन है व्हेन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी, जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे। नेक्स्ट है आपका व्हेन द स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल एंड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द पार्लियामेंट। जब कोई स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर में है और जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उस स्टेट की वो पार्लियामेंट को ट्रांसफर कर दी गई है, तो ऐसी कंडीशन हो। और जो फोर्थ कंडीशन है वो है इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली itself passes a resolution that parliament should enact a law on a particular subject। यदि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्वयं एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट कानून बनाए, तो ये चारों सर्कमस्टांसेस हैं। ओके, these characteristics of the constitution indicate that the union government is more powerful। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये इंडिकेट करते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट मींस कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। although the subjects under the union and state have been decided into 3 lists, but such subjects which are not there in any of these lists, such powers are residual powers। हालांकि यद्यपि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको यूनियन और स्टेट ने इन तीनों लिस्ट में डिसाइड किया है, डिवाइड किया है, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जो इन लिस्ट में नहीं आते उन्हें हम रेसिडुअल पावर्स कहते हैं। Now students, we are going to start the 13.4 topic. It is a very important topic of this chapter, organs of the government। तो ये टॉपिक में कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। द फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, द सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर मीन्स विधायिका, इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, इट्स अ वर्किंग बॉडी। ओके, एंड द थर्ड इज जुडिशरी, इसे हम बोलते हैं न्यायपालिका, जो न्याय देने का काम करती है। तो 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, सो लेट्स बिगिन। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दैट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट व्हिच फ्रेम्स लॉज इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऑर्गन्स, ऐसा ऑर्गन सरकार का जो कानून बनाने का काम करता है, जो लॉ फ्रेम करता है, उसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, जो कानून बनाने का काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। दैट ऑर्गन्स व्हिच एनफोर्सेस द लॉज एंड एंश्योर दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। ओके, तो सेकंड क्या, एग्जीक्यूटिव। ऐसा ऑर्गन होता है जो इन कानूनों को लागू करता है और उनका पालन करवाता है, उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। And the organ which punishes those who do not follow, obey them is called the judiciary। तो जुडिशरी कैसा ऑर्गन होता है, जो ऐसे लोगों को पनिश करता है जो इन कानूनों का पालन नहीं करते हैं, उनको पनिश देने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं जुडिशरी। These 3 organs make government, और ये तीनों ऑर्गन्स मिलकर ही सरकार बनाते हैं। So the legislature may have 1 or 2 houses।
लेजिस्लेचर में 1 और 2 हाउसेस हो सकते हैं, where there are 2 houses. The first one is called the lower house and the second one upper house. वहां जहां पर 2 हाउसेस होते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस, फर्स्ट वन को हम बोलते हैं लोअर हाउस, मींस की लोकसभा, और जो सेकंड वन है उसे हम बोलते हैं अपर हाउस, जिसे हम बोलते हैं राज्यसभा। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट है, जहां पर पार्लियामेंट के 2 हाउसेस है। ठीक है, तो पहला है लोकसभा जिसे हम बोलते हैं लोअर हाउस, और दूसरा है राज्यसभा जिसे हम बोलते हैं अपर हाउस। द लेजिस्लेचर परफॉर्म्स many important functions. Important ones are, लेजिस्लेचर काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, फ्रेमिंग लॉस। द लेजिस्लेचर प्रिपेयर लॉस फॉर प्रॉपर्ली गवर्निंग द कंट्री। लेजिस्लेचर कंट्री को प्रॉपर्ली गवर्न करने के लिए कानून बनाता है। तो फर्स्ट क्या है, लॉ फ्रेम करना, देश को प्रॉपर्ली चलाने के लिए कानून बनाने का काम करना। ओके, now the second is amendment in the constitution. So students, amendment का मतलब मैंने आपको बताया कि चेंजेस करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन पावर्स ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू द लेजिस्लेचर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर्स हैं अमेंडमेंट के, वो लेजिस्लेचर को दिए हैं। पार्लियामेंट मेक्स नेसेसरी अमेंडमेंट एज पर नीड्स। और पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट्स हैं, जो जरूरी अमेंडमेंट्स हैं, नीड के अकॉर्डिंग वो करती है। नाउ द थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। द लेजिस्लेचर आल्सो डिस्चार्ज द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण रखने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है। दस लेजिस्लेचर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव पर अपना कंट्रोल करती है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज टू डिसाइड पॉलिसीज फॉर स्टेट एंड द गवर्नमेंट। The legislature does the work of deciding policies and giving directions to the state. Legislature policies को decide करने और state को directions देने का काम करती है। It gives sanctions to the policies formulated by the executive. और ये जो policies executive ने formulate की हैं, जो बनाई है, उनको sanctions देने का काम भी legislature करती है। ओके, उनको स्वीकृति प्रदान करने का काम भी legislature करती है। Now the fifth is functions related to finance. The legislature does the work of imposing or reducing taxes and according sanctions to expenditure of executive. जो legislature है वो taxes को impose करने, means taxes को लगाने, taxes को reduce करने, कम करने, या taxes को खत्म करने, समाप्त करने का काम करते हैं, तथा शासन के expenditures को स्वीकृति प्रदान करने का कार्य legislature द्वारा ही किया जाता है। Thus it exercise control over the money received from the people. और इस तरह वह जनता से प्राप्त मनी पर कंट्रोल रखती है। Now the sixth point is discussion of subjects presented in the houses. The members deliberate on different subjects and problems placed before the house. Houses में present subjects and problems पर ध्यान पूर्वक विचार और डिस्कशन किया जाता है। They discuss all aspects of the proposed law before passing it so that the law may really benefit the public. हर संबंधित पक्ष पर डिटेल में डिस्कशन कर लिया जाता है, जिससे कानून का निर्माण जनता के हित में हो। Now the next is judicial functions. In many countries, the legislature does the work of judiciary also. कई सारी कंट्रीज में लेजिस्लेचर ही जुडिशरी का वर्क करती है, न्यायपालिका का काम करती है। द लेजिस्लेचर ओनली कैन रिमूव द प्रेसिडेंट बाय इम्पीचमेंट। लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के द्वारा हटा सकती है। इम्पीचमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं महाभियोग, मींस कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट लाकर उसे लेजिस्लेचर हटा सकती है। इन अमेरिका ऑल्सो द लेजिस्लेचर टेक्स डिसीजन ऑन द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। अमेरिका में भी प्रेसिडेंट पर लगाए गए इम्पीचमेंट का डिसीजन वहां की लेजिस्लेचर ही करती है। नाउ द 8th पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस।
Such subjects in which there is a necessity of giving a deep thought or where minute examination from all point of view is needed, the legislature appoints committees, commissions and officers for them. जिन विषयों पर बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है, उन पर विचार करने के लिए कमिटीज, कमीशंस के फॉर्मेशंस और ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट करने का कार्य लेजिस्लेचर द्वारा ही किया जाता है. 9th point is control over foreign policies. In many countries, treaties and agreements with other countries cannot be enforced with the approval of legislature. In many countries, permission of the legislature is necessary for waging a war with another country. अनेक देशों में लेजिस्लेचर की अप्रूवल के बिना ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स को लागू नहीं किया जा सकता. कई देशों में दूसरे देशों से युद्ध करने के लिए भी लेजिस्लेचर की परमिशन लेनी होती है. Now, 10th point is work relating to elections. In India, the president is elected by the elected representatives of the parliament and legislative assemblies. In many countries, the legislature does the work of elections. इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा किया जाता है. अनेक देशों में लेजिस्लेचर इलेक्शंस रिलेटेड कार्य करती है. So it was all about the legislature.